Namaste everyone. Abhida Vidyasti online classes welcomes to you. Okay, today I am going to explain you chapter 1 of class 5, The Mice That Ate Iron. Okay, so let's start. Maniram was a merchant. His most precious possession was a pair of iron scales. This is iron scales. In Hindi we can call it taraju. Okay, so Maniram, he was a merchant. Maniram एक merchant होता है और his most important possession means assets, कोई चीज जो आपकी सबसे ज्यादा कीमती होती है और उसके लिए वो होते हैं iron scales. I have to go out of town. I am afraid someone will steal these weighing scales while I am away. Now he have to go out of town for some reasons. So he was thinking that जब वो बाहर रहेगा तो मे भी कोई उसके आयरन स्केल्स चुरा ना ले. So he requested his friend Lakshman to keep them safe for him. This is all I have left in the world. Please, will you look after my scales? Maniram requested his friend Lakshman that I have to go out of town. Please, will you look after my scales? Of course, Lakshman agreed to help him. Maniram went off on his journey with an easy mind, but it had a nasty surprise when he returned. Now Maniram उसकी जर्नी पर निकल जाता है with an easy mind. With an easy mind means peacefully, without any tension, without any fear. वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है. But when he returned, जब वो रिटर्न आता है तो उसे एक nasty surprise मिलता है, एक बहुत ही गंदा वाला surprise मिलता है. What do you mean? You no longer have my scales? What happened? Now Maniram asked to Lakshman that क्या मतलब है तुम्हारे पास मेरे स्किल्स नहीं है. मिस क्या हुआ है? I tried to save your skills but mice gobbled them up. अब जब मनीराम लक्ष्मण से पूछता है कि where is my skills like this, so he replied that sir I tried to save your skills but कुछ mice ने तुम्हारे skills gobble कर ली. Gobble means निगल जाना. ठीक है. Maniram was no fool. He guessed that Lakshman was lying. He would have to trick Lakshman into admitting the truth. अब Maniram was not fool. Obviously, ऐसे excuse पे no one can believe. Okay, so Maniram also, but he never mind my friend. It is just my bad luck. वो लक्ष्मण से कहता है, okay, it's okay, no problem. Maybe it is my bad luck. Thank God he accepted my excuse. और जो लक्ष्मण है वो अंदर ही अंदर सोचकर बहुत ही हैप्पी होता है that जो मनीराम है उसने उसका excuse accept कर लिया है. लक्ष्मण had not thought it would be so easy to fool मनीराम. लक्ष्मण ने सोचा भी नहीं था that मनीराम को फूल बनाना इतना easy होगा. When मनीराम asked for a favor, he was happy to agree. और जब मनीराम ने उससे फेवर मांगा, उससे हेल्प मांगी तो वो easily agree हो गया. I want to bath in the river before I go home. Can your son help carry my things? Now, मनीराम लक्ष्मण से क्या हेल्प मांगता है? वो कहता है कि मुझे रिवर में नहाने जाना है घर जाने से पहले और मेरे पास कुछ सामान है तो जब तक मैं रिवर में नहाऊंगा तब तक तुम्हारा बेटा मेरे थिंग्स को संभाल कर रखेगा. तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ अपने साथ? इस टाइप से वो कहता है. Certainly go and help Maniram's son. और लक्ष्मण भी हैप्पीली उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और अपने सन को उसके साथ भेज देता है. थैंक यू, आई विल बी सून. और वो थैंक यू कहता है और कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा. आफ्टर हिज बाथ Maniram took the boy home and locked him inside. Then he went back to Lakshman's house and began to weep loudly. After his bath मीन्स वो नहाकर वापस आता है, अपने घर जाता है और लक्ष्मण के सन को रूम में लॉक कर देता है बाहर से और वो लक्ष्मण के पास जाता है और उसके सामने जाकर वो जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से विप करने लगता है. What has happened? Where is my son? Now Lakshman asked to Maniram that क्या हुआ है? Where is my son? Oh Lakshman, while I was bathing in river, a hawk swooped down and carried your son away. अब मनीराम है वो बताता है उससे जब मैं नदी में नहा रहा था तो एक हॉक आया और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया. लक्ष्मण was beside himself with anger. He shouted at Maniram. Hearing the deed, many villagers began to gather around. अब
लक्ष्मण मनीराम पर जोर जोर से शाउट करने लग गया और उनकी ये जो बहस थी, इनका ये जो झगड़ा था, ये सुनकर जो बाकी जो विलेजर्स थे वो गैदर होने लगे। लायर, चीट, आई डोंट बिलीव यू। लक्ष्मण मनीराम को इस तरह से कहता है दैट यू आर लाइंग, यू आर चीटर, आई डोंट बिलीव यू, लाइक दिस। आई ट्राई टू सेव योर सन बट द हॉक फ्लू अवे। और मनीराम कहता है लक्ष्मण से दैट मैंने कोशिश की थी तुम्हारे बेटे को बचाने की, बट वो हॉक जो है उससे उठाकर ले गया। फ्यूरियस लक्ष्मण dragged to मनीराम to the सरपंच, the villager followed। अब लक्ष्मण जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो मनीराम को सरपंच के पास ले गया और उसके पीछे पीछे जो बाकी विलेजर्स थे वो भी उसे फॉलो करते हुए सरपंच जी के पास चले गए। सरपंच जी, मनीराम has kidnapped my son, he must be punished, tell him to bring back my son at once। अब लक्ष्मण मनीराम से कहता है, लक्ष्मण मनीराम से कहता है कि सॉरी लक्ष्मण प्लीज पॉज। अरे बोल क्यों रहे हो, चलने देना। सॉरी। सो लक्ष्मण सरपंच जी से कहता है दैट मनीराम हैज किडनैप्ड माय सन, मनीराम ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, ही मस्ट बी पनिश, और उसको इसके लिए पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, और इससे कहिए कि मेरा बेटा मुझे अभी के अभी वापस करे। द सरपंच गैज्ड एट मनीराम, सरपंच मनीराम की ओर एकदम गुस्से से देखते हैं। What have you done with the boy, मनीराम? And he asked to मनीराम that तुमने उस बॉय के साथ क्या किया है? He was sitting on the river bank while I took a bath. Suddenly a hawk swooped down and carried the boy away। और मनीराम सरपंच जी को बताता है दैट वो जब नदी में नहा रहा था तो एक हॉक आया और उनके बेटे को उठाकर ले गया। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की, बट मुझसे नहीं हो पाया, लाइक दिस। द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनीराम, सरपंच मनीराम की बातों पर बिलीव नहीं करते। ऑब्वियसली इस टाइप से कोई आपको भी एक्सक्यूज दे तो आप खुद भी उस पर बिलीव नहीं करेंगे। सो सरपंच जी भी मनीराम पर बिलीव नहीं करते। श्योरली यू डू नॉट एक्सेप्ट मी टू बिलीव दिस नॉनसेंस, और वो मनीराम से कहते हैं कि तुम मैं इस टाइप के नॉनसेंस पे बिलीव करूं, तुम ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, लाइक दिस। He is a liar, your honor, he must be punished। और इतने में फिर लक्ष्मण बीच में कहता है he is a liar, और इसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। Now all the villagers gathered around Maniram and asked him to tell the truth। Maniram's reply left everyone except Lakshman mystified। अब जब सभी लोग बहुत फोर्स करते हैं मनीराम को, सरपंच जी और विलेजर्स सच जानना चाहते हैं, तब इतने में जो मनीराम जो बताता है उससे सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। तो क्या कहता है एक्चुअल में मनीराम? His mice ate up my aunt's scales and I didn't raise a hue and cry, but when a hawk carried away his son, why does he say I lie? अब मनीराम कहता है कि जब इसके माइस ने मेरे आय स्केल्स खा लिए थे तब तो मैंने इतना ड्रामा क्रिएट नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ कि एक हॉक ने इसके बेटे को उठा लिया तो ये इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहा है? सरपंच realized at once that there was more to the story than what Lakshman had said. He spoke kindly to मनीराम। अब इतना जब कहा मनीराम ने तो सरपंच जी को पता चल गया था कि स्टोरी में और भी कुछ है, जितना जो लक्ष्मण बता रहा है उससे भी ज्यादा कुछ स्टोरी में है। तो वो एकदम काइंडली मनीराम से पूछते हैं, मनीराम, instead of talking in riddles, why don't you tell me what happened? अब वो मनीराम से एकदम काइंडली होके पूछते हैं कि इस टाइप के रिडल्स बुझाना बंद करो, पहेलियां बुझाना बंद करो, मुझे डायरेक्टली बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। Maniram told the सरपंच and the assembled villagers how his friend had tried to cheat him। अब मनीराम ने सरपंच को जितने भी असेंबल्ड विलेजर्स थे वहां पे सभी को बताया कि किस टाइप से लक्ष्मण ने उसे चीट करने की कोशिश किया, चीट किया उसने। If mice could eat my aunt's scales, then why can't a hawk fly away with the boy? और वो फिर से कहता है कि अगर माइस मेरे आयरन स्केल्स खा सकते तो हॉक एक लड़की को लेकर क्यों नहीं जा सकता है? The सरपंच spoke sternly to लक्ष्मण, और फिर सरपंच एकदम कठोर होकर लक्ष्मण से पूछते हैं that लक्ष्मण, you cheated Maniram and stole his scales, return them to him immediately। और वो सरपंच जी लक्ष्मण से कहते हैं एकदम स्ट्रिक्ट होके दैट तुमने मनीराम को चीट किया तो अभी के अभी उसके आयरन स्केल्स उसे
रिटर्न करो. Your son is safe and sound in my house. I will bring him right away. Just I wanted to teach you a lesson. और फिर मनीराम लक्ष्मण से कहता है that तुम्हारा जो सन है वो मेरे घर पे सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहता था, ठीक, एक सबक सिखाना चाहता था. प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन ग्रीडी, आई हैव लर्न माई लेसन नाउ. और लक्ष्मण मनीराम से माफी मांगता है, उससे कहता है कि मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था, ठीक है, तुम जो बताना चाहते थे वो मैं समझ गया हूँ, लाइक दिस. सो here the moral of this story is never cheat your friend and don't be so greedy. means हमें हमारे फ्रेंड्स लोगों को चीट नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करनी चाहिए. ओके, थैंक यू.